Good morning, students. Today's topic is continuous and pulsed lasers. In the last lecture, we have learned the different types of modes and mode selection techniques. Now, to start the Q switching, we will discuss some terms regarding the Q switching and some idea about the continuous and pulsed lasers. So, what are the continuous and pulsed laser? So there are two types of lasers we have. First is continuous or continuous wave laser, and in short we can say CW laser, and the second one is pulsed laser, pulsed wave laser. So this is uh, pulsed wave laser, and first is the continuous wave laser. So as in the case of continuous wave and pulsed wave, as we know that in continuous wave, the wave is continuous with respect to the time. There is no on and off uh, with respect to the time. So the continuous wave laser, the laser which will give light always, that is the always on. Okay, so continuous wave laser is one in which the laser which will give light always. Okay, there is no on and off between the laser output. Okay, so the laser which will give light always on, that is called the continuous wave laser. So in this type of laser we will have the continuous wave of the laser. So the power for the continuous wave laser, P is equal to E by T. As we know that power is what? Energy flow per time. So energy flow per time will give you the power for continuous wave laser. Okay. And the unit of the power is, as we know, is watt. So the average power in this figure we can see, if we draw the E versus T, energy versus T, then this shaded area, and this is what? Continuous wave. You can see that this is the continuous wave with respect to the time. There is no on and off of the light output. Okay, if there is on and off, then we will have the wave like this. But here we have the continuous wave output. Okay, so if I take a particular time interval, say from here to here, from here to here, then the shaded area given by this curve, this line, draw the perpendicular on this axis, and this shaded area will give you the average power, that is P average. So in this figure, this is for continuous wave laser, and laser output, that is continuous of a continuous wave type. Okay, so in this shaded area will give you the average power, that is P average. Okay, so remember it. And here we can see that energy of the light is a function of time. Okay, now what is the pulsed laser? In pulsed laser output, the light output of the light is not continuous, and it is on and off, like in this. Okay, so here we can see that the output is not continuous.
that is it is changing with time. It is changing with time. ओके, सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पल्स्ड लेज़र में जो आउटपुट है, एनर्जी जो है, एनर्जी वो टाइम के साथ क्या हो रहा है, इट इज़ चेंजिंग विथ टाइम। ओके, जबकि कॉन्टिन्यूस वेव, जो वेव था, कॉन्टिन्यूस वेव लेज़र में आपने देखा कि एनर्जी जो है वो क्या है, कॉन्टिन्यूस है टाइम के साथ। ओके, so in case of the CW laser, that is continuous wave laser, the pulsed laser, we have the average power. Okay, we have seen that here we have the average power, but in pulsed laser, in pulsed laser, we have the average power as well as we have the peak power. ओके, सो पल्स पावर में क्या है, आपके पास एवरेज पावर के साथ साथ आपके पास पीक पावर भी है। ओके, सो what is the peak power? To understand that, we have to understand what is the time width and pulse width. Okay, so this for this time period, this when for this time period when the laser is on. Okay, this is the time period when laser is on, and this is the time period when laser is off. So remember it, that this is the power, this is the time period when laser is on, and this is the time when laser is off. So what is the, in a second there are several pulses. In 1 second, there are the number of pulses. Okay, number of pulses. So what is repetition rate here? The repetition rate is that how many time the pulse will appear in a second, कि एक पल्स जो है वो एक सेकेंड में कितनी बार हमको मिलती है, कितनी बार दिखाई देगी। ओके, सो एक सेकेंड में जो पल्स है वो कितनी बार अपीयर होगी, दैट इज कॉल्ड द रिपीटिशन रेट। सपोज एक सेकेंड में हमें जो पल्स है वो 100 बार दिखाई देती है, तो 100 इज द रिपीटिशन रेट ऑफ दिस pulsed laser. Okay, so if a pulse appears 10 times in a second, if 10 times दिखाई दे रही है कोई पल्स, तो हम कहेंगे कि पल्स रिपीटिशन रेट जो है वो क्या है, 10 हर्ट्स है। पल्स रिपीटिशन रेट इज 10 हर्ट्स। ओके, if a pulse appears 100 times in a second, then 100 1000 times, sorry, if a pulse appears 1000 time in a second, यानी कि एक पल्स अगर एक सेकेंड में 1000 टाइम्स हमें अपीयर होती है, तो हम कह सकते हैं कि पल्स रिपीटिशन रेट उसके लिए क्या होगा, 1000 हर्ट्स, और हम कह सकते हैं 1 किलो हर्ट्स। ओके, नाउ पल्स विड्थ, जो मैं आपको बोल रही थी कि पल्स विड्थ क्या है या टाइम विड्थ जो है, वो हमें पहले पढ़ना पड़ेगा कि पल्स विड्थ और टाइम विड्थ क्या है। So for the duration of time when the light is on, so we have seen that light is on for this duration, okay, so this duration is called the time width or pulse width. So this duration is called the time width or pulse width. Okay, so this duration is pulse width. Now P average for pulsed laser, P average is equal to E by the, here energy flow per time, we were saying that the P average, that is the power is what, energy flow per time, but we are saying about the
P average, that is average power for pulsed lasers. तो pulsed laser के लिए जब हम average power लिखेंगे तो हम उसे क्या लिखेंगे, energy flow per time period. ओके, सो पर टाइम पीरियड जो एनर्जी फ्लो होगा उसको हम क्या कहेंगे, पी एवरेज. अब ये टाइम पीरियड क्या है, जब पहली पल्स शुरू होती है, सपोज पहली पल्स जो शुरू होने का टाइम कहाँ से है, ये वाला, ठीक है, यहाँ से टाइम शुरू करते हैं. और जब दूसरी पल्स शुरू होगी, यानी कि ये जब पहली पल्स स्टार्ट होने से लेकर दूसरी पल्स के स्टार्ट होने तक का जो टाइम पीरियड है उसको हम कहेंगे टाइम पीरियड ऑफ द पल्स लेजर. ओके, समझ में आया. एक पहली जो पल्स है जब जहाँ से शुरू हो रही है और दूसरी पल्स जब शुरू होगी, उनके बीच का जो डिफरेंस है, टाइम डिफरेंस है, उसको हम कहेंगे टाइम पीरियड, कैपिटल टी. सो नाउ व्हाट इज द पीक पावर. अब ये पीक पावर क्या है, पीक पावर इज द टोटल एनर्जी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम गिवन बाय द पल्स विड्थ. So total energy over a period of time given by the pulse width, that is E by delta t. So over the time period, that is capital T, the amount of energy that detector will measure will be same. So E is equal to P average into capital T. From equation first we can write P average is equal to E upon T, then E is equal to P average into T. This, so over the time period capital T, the amount of energy, this time period, इस टाइम पीरियड के लिए जो एनर्जी की अमाउंट होगी, जिसको कि डिटेक्टर, अगर हम डिटेक्टर लगा दें लेज़र सिस्टम के पास, सिस्टम की जो जहाँ पर हमें लाइट बीम आउटपुट मिल रहा है वहाँ पे अगर हम डिटेक्टर लगा दें तो टी टाइम पीरियड के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो होगी वो क्या होगी, सेम होगी. ठीक है, क्यों, क्योंकि लाइट जो है वो क्या है, दिस सेक्शन के लिए, फॉर दिस सेक्शन लाइट इज ऑफ. ठीक है, इस सेक्शन के लिए क्या है, लाइट ऑफ है. तो अगर मुझे इस पूरे सेक्शन के लिए ये एनर्जी आउटपुट निकालना है ओवर दिस टाइम पीरियड टी, तो क्या होगा, सेम ही होगा, चाहे अगर मैं इसके लिए निकालूं या फिर मैं इस पूरे पार्ट के लिए निकालूं, जो एनर्जी होगी वो क्या रहेगी, सेम रहेगी. क्यों रहेगी, क्योंकि इस टाइम पीरियड के लिए, ये जो बीच में ये जो टाइम पीरियड है, इसके लिए जो एनर्जी है वो तो क्या रहेगी, ज़ीरो ही रहेगी. ओके, क्योंकि इस टाइम पीरियड के लिए जो लाइट है, लेज़र लाइट जो है वो क्या है, ऑफ है. ठीक है, केवल इसके लिए ऑन है. तो मुझे अगर इस पूरे टोटल टाइम पीरियड के लिए एनर्जी निकालनी है तो वो उतनी ही आएगी जितनी की किसके लिए आई थी, इस वाले रीजन के लिए आई थी. ठीक है, सो वहाँ से हम लिख सकते हैं कि इस इक्वेशन फर्स्ट का यूज़ करके E इज इक्वल टू पी एवरेज इंटू कैपिटल टी, एंड E इज इक्वल टू, यहाँ से लिख सकते हैं इक्वेशन 2 से लिख सकते हैं E is equal to P into, this is P peak, so P into delta T, so P peak into delta T, E is equal to this. Okay, so this energy is same, ये एनर्जी जो है वो सेम है. हमने ये E दोनों में E ही लिखा है, इस वाले पीरियड के लिए और इस वाले टाइम पीरियड के लिए. ठीक है, क्यों लिखा है, ये जो यहाँ पर जो हमने डेल्टा टी लिया है ये वाला पी पीक के लिए, टोटल एनर्जी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम गिवन बाय द पल्स विड्थ, ये E अपॉन डेल्टा टी. ठीक है, तो ये जो डेल्टा टी, हमने ये वाला डेल्टा टी लिया है. ठीक है, इसके लिए जो एनर्जी है, इसके लिए, सॉरी, ये वाला जो हमने दिया है, ये जो डेल्टा टी है ये इसके लिए, और ये वाला जो टाइम है इसके लिए जो एनर्जी है वो क्या है,
सेम है, चाहे हम ये वाला पोर्शन ले चाहे हम ये वाला पोर्शन ले, इसलिए हमने दोनों में क्या लिया है, ई, कैपिटल ई लिया है। ओके, सो दोनों इक्वेशन से हम इक्वेट कर सकते हैं इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 को, तो वी विल गेट दी टी, ये P average into T is equal to P peak into delta T. So P average into T is equal to delta T into P peak. So delta T upon capital T, इसको मैं इधर ले आई तो ये हो जाएगा आपका P average upon P peak. So this is what? This is called the duty cycle. Duty cycle. Duty cycle. Okay. So this is what? Fraction of time for which the pulse of laser is on over a period of time t. ठीक है, ये वो फ्रैक्शन है टाइम का जिसके लिए कि पल्स जो है, लेज़र पल्स क्या रहेगी, ऑन रहेगी, ऑन रहेगी। ठीक है, इस कैपिटल टी टाइम के लिए लेज़र जो है, लेज़र पल्स जो है वो क्या रहेगी, ऑन रहेगी। ठीक है, दिस फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए। So this is known as the duty cycle of a laser. So duty cycle of a laser is P average by P peak. So example, if for a laser peak power is 10 kilowatt and pulse width is 1 nanosecond, that is 10 to the power minus 9 second, and repetition rate is 1 kilohertz. Okay, 1 kilohertz. Then what is found? Find the P average. P average. Baris. P average. Then find the P average. P average is equal to delta T upon capital T into P peak. This is from equation 5. This is from equation 5. Delta T upon capital T is equal to P average upon P peak. So P average हमें निकालना है. So P average is equal to delta T upon capital T into P peak. So from equation 5. ठीक है. So delta T is what? 10 to the power minus 9 seconds. So delta T is the pulse width. Okay, and capital T is what? 1 upon 1000 seconds, because repetition rate is 1 kilohertz, यानी कि 1000 pulse in 1 second. ठीक है, अपीयर होती है 1000 pulse, यानी कि एक पल्स जो है 1000 टाइम जो है अपीयर होती है 1 सेकेंड में। तो उसके लिए जो कैपिटल टी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1000 पल्स 1 सेकेंड में अपीयर होंगी, तो एक पल्स जो होगी वो होगी 1/1000 सेकेंड टाइम। ठीक है, सो 1/1000 सेकेंड से यहाँ से आ गया, ठीक है वैल्यू। अब पी पीक जो है हमें गिवन है 10 किलोवाट, सो 10 किलोवाट। ओके, तो यहाँ वैल्यूज रख लिए हमने 10 टू पावर माइनस 9 इंटू 10 किलोवाट इन 10 टू पावर 3 इंटू, सॉरी यहाँ से आया 10 टू पावर माइनस 3, ऊपर आ गया 10 टू पावर प्लस 3, एंड दिस 10 इंटू 10 की पावर 3 वॉट, तो ये आ गया 10 टू पावर माइनस 6 इंटू 10 टू पावर 4, दैट इज 10 टू पावर माइनस 2, that is 10 milliwatt, we can write it 10 milliwatt. So P average आपके पास आ गया है 10 milliwatts. That means if a laser has 10 kilowatt peak power, it will has 10 milliwatt average power. यानी कि पीक पावर और एवरेज पावर में इतना डिफरेंस होता है। अगर पीक पावर जो है किसी लेज़र के लिए वो 10 किलोवाट है तो एवरेज पावर उसके लिए बहुत कम होती है। इसमें जैसे इस केस में, इस एग्जांपल में हमने देखा कि एवरेज पावर आ रही है 10 मिलीवॉट। ठीक है,
तो यानी कि अगर हम एक ही ग्राफ में बनाए लेज़र, ये एवरेज पावर एंड पीक पावर के लिए एक ही ग्राफ में देखें हम, तो कॉन्टिन्यूस वेव का जो पीक है और एवरेज का जो पीक हो, एवरेज पावर के लिए जो हम बना रहे हैं, ग्राफ देख रहे हैं, उसकी कंपैरिजन में जो पीक पावर होगा वो काफ़ी, उसका पीक काफ़ी होगा ये, ठीक। तो दिस वैल्यू इज हाई in comparison to the average value. So peak value is very high in comparison to the average value. So peak is greater than p average. Now the pulse shape. Pulse shape can be of three types. First is Gaussian pulse shape. Second is hypersecond. Hypersecond can be also a pulse shape, and other arbitrary shape we can use. So pulse shape generally जो है Gaussian shape की, hypersecond shape की होती है. Okay. So some function should fit the pulse, and accordingly we will have a pulse shape, and that will describe the pulse width. Okay. तो हम ये जो function ले रहे हैं कि जो उस pulse width को फिट हो जाएगा pulse width पे, उस pulse में फिट हो जाता है, so that will describe our pulse width. Okay. So Gaussian pulse width, Gaussian shape is of type, Gaussian function जो होता है वो pt is equal to this p exponential minus 4 ln 2 t upon tau p square, where this tau p is the pulse width. So for Gaussian, this Gaussian pulse, and this is the tau p, full wave, a full width half maxima. This is the pulse width. Now the next term is time bandwidth product. So what is the time bandwidth product? So this is a product of one of the pulse width and spectral bandwidth. तो ये क्या है, टाइम बैंडविड्थ प्रोडक्ट जो है वो क्या है, ये प्रोडक्ट है पल्स विड्थ का और स्पेक्ट्रल बैंडविड्थ का. सो पल्स विड्थ इज रिलेटेड विद द टाइम. ओके. एंड स्पेक्ट्रल बैंडविड्थ, सपोज दिस इज गॉसियन टाइप, सो दिस इज द बैंडविड्थ. ओके. सो बैंडविड्थ और बैंडविड्थ हमने देखा है ऑप्टिकल गेन, अभी हमने पढ़ा भी था ऑप्टिकल गेन और न्यू के बीच में हम ग्राफ लेते थे. तो दिस इज, if this is called the डेल्टा न्यू. ठीक है. और ये डेल्टा न्यू जो है हमारी स्पेक्ट्रल बैंडविड्थ होती थी. सो प्रोडक्ट ऑफ द पल्स विड्थ एंड बैंडविड्थ is the time bandwidth product. Okay. And it depends upon the what kind of pulse we are using. So ये किस पे डिपेंड करती है कि हम किस टाइप की जो पल्स है वो ले रहे हैं, ये यूज़ कर रहे हैं. जैसे गॉसियन टाइप है या हाइपर सेकेंड टाइप है या कोई आर्बिट्रेरी शेप है. सो जिसे सपोज हाइपर सेकेंड पल्स अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो टॉप पी इंटू डेल्टा न्यू जो होता है वो 0.31 होता है, नियरली 0.31. ओके. सो ये जो रिलेशन है ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट रिलेशन है. एंड दिस रिलेशन एक्चुअली व्हाट डज इट डू, इट puts the limit to the minimum spectral width for a given fixed temporal width. एक given pulse width के लिए ये मिनिमम स्पेक्ट्रल विड्थ को क्या करता है, लिमिट करता है कि इतनी पल्स विड्थ के लिए, माना कि पल्स विड्थ हमें गिवन है तो उसके लिए जो स्पेक्ट्रल विड्थ है वो कितनी होनी चाहिए, उससे ज़्यादा हम उसको स्क्वीज नहीं कर सकते हैं. ओके. या फिर हम कह सकते हैं फॉर अ मिनिमम टेम्पोरल विड्थ, फॉर अ मिनिमम टेम्पोरल विड्थ यानी कि मिनिमम पल्स विड्थ के लिए ये क्या देता है, एक इट पुट्स द लिमिट टू द मिनिमम टेम्पोरल विड्थ. यानी कि टेम्पोरल विड्थ भी ये क्या करता है, इस पर भी लिमिट लगा सकता है गिवन स्पेक्ट्रल बैंडविड्थ के लिए.
यानी कि हमें स्पेक्ट्रल विड्थ बैंडविड्थ जो है गिवन है, डेल्टा न्यू गिवन है, तो ये हमें बता सकता है कि हमें जो टेम्पोरल विड्थ है उसकी वैल्यू जो है वो कितनी होनी चाहिए, हम उसको उससे ज़्यादा स्क्वीज नहीं कर सकते हैं या उससे ज़्यादा बढ़ा नहीं सकते हैं, ठीक है। सो विच इज़ नोन एज द ट्रांसफॉर्म लिमिट, सो दिस इज नोन एज द ट्रांसफॉर्म लिमिट। तो ट्रांसफॉर्म लिमिट का क्या काम है कि एक गिवन गिवन टेम्पोरल विड्थ के लिए या गिवन पल्स विड्थ के लिए एक स्पेक्ट्रल विड्थ की जो वैल्यू है वो मिनिमम होनी चाहिए, उससे कम हम उससे ज़्यादा हम जो है उसको स्क्वीज नहीं कर सकते हैं, या फिर एक स्पेक्ट्रल गिवन स्पेक्ट्रल विड्थ के लिए एक मिनिमम टेम्पोरल विड्थ या पल्स विड्थ होनी चाहिए, उससे ज़्यादा हम उसको स्क्वीज नहीं कर सकते हैं। सो दिस इज कॉल्ड द ट्रांसफॉर्म लिमिट। ओके, दिस इज नोन एज द ट्रांसफॉर्म लिमिट, ठीक है। सपोज डेल्टा न्यू इज इक्वल टू 100 हर्ट्स, देन टॉप ई यानी कि पल्स विड्थ कांट बी मिनिमाइज्ड और कंप्रेस्ड बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट। तो अगर हमें क्या गिवन है, एक स्पेक्ट्रल बैंडविड्थ गिवन है दैट इज 100 हर्ट्स का, ठीक है। तो उसके लिए जो पल्स विड्थ होगी दैट कांट बी मिनिमाइज्ड और कंप्रेस्ड, यानी कि अगर हमें पल्स विड्थ की एक सर्टेन लिमिट है, उससे ज़्यादा हम उसको मिनिमाइज नहीं कर सकते हैं, उसको कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एंड दैट लिमिट इज कॉल्ड दी ट्रांसफॉर्म लिमिट। वो लिमिट जो है वो क्या कहलाएगी, ट्रांसफॉर्म लिमिट। उस ट्रांसफॉर्म लिमिट के बियॉन्ड हम इसको मिनिमाइज नहीं कर सकते हैं पल्स विड्थ को, ठीक है। इस पर्टिकुलर केस में जहाँ पर हमें डेल्टा न्यू गिवन है, तो पल्स विड्थ को हम उस सर्टेन लिमिट से बियॉन्ड मिनिमाइज नहीं कर सकते हैं, कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, एंड दैट लिमिट इज कॉल्ड द ट्रांसफॉर्म लिमिट। ओके, एंड द टाइम द पल्स इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्म लिमिटेड पल्स। और जो इस जो पल्स जो है जिसपे कि हम इस ट्रांसफॉर्म लिमिट को लगा रहे हैं वो पल्स कहलाती है ट्रांसफॉर्म्ड लिमिटेड पल्स, ट्रांसफॉर्म्ड लिमिटेड पल्स। So this relation, that is delta nu into tau p, this relation is very very important and very very useful in case of the ultra short pulses. Ultra short pulses like जैसे 10 to power minus 10 to power minus 9 second. Okay, दिस इज द नैनो सेकेंड, बट नैनो सेकेंड के लिए तो ये शॉर्ट पल्स है, तो दिस इज नॉट 10 टू पावर माइनस 9 सेकेंड नहीं होगा, यहाँ पर फेम्टो सेकेंड्स के लिए हम बोल सकते हैं अल्ट्रा शॉर्ट पल्स, ठीक है। ये जो पल्स विड्थ है 10 टू द पावर माइनस 9 सेकेंड, दिस इज फॉर शॉर्ट पल्सेस, शॉर्ट पल्सेस। ओके, तो यहाँ पे सही कर लेना आप, ये नहीं होगा। 10 टू द पावर माइनस 15 लिख सकते हैं हम, 10 टू पावर माइनस 15 दैट इज फेम्टो सेकेंड। तो फेम्टो सेकेंड है जैसे, उसको हम कह सकते हैं अल्ट्रा शॉर्ट पल्स, जिसकी पल्स विड्थ जो है वो फेम्टो सेकेंड्स में हो, या फिर 10 टू पावर माइनस 18 सेकेंड दैट इज एटो सेकेंड हो, ठीक है, और बियॉन्ड दैट। सो इनको हम कह सकते हैं अल्ट्रा शॉर्ट पल्स, ठीक है। तो इन पल्सेस के लिए, अल्ट्रा शॉर्ट पल्सेस के लिए, जिसके लिए कि पल्स विड्थ जो है 10 टू द पावर माइनस 15 सेकेंड हो या 10 टू पावर माइनस 18 सेकेंड हो, इन पल्सेस के लिए ये रिलेशन जो है ये बहुत बहुत यूजफुल रिलेशन है। ओके, एंड दिस रिलेशन ऑल्सो टेल्स अस दैट हाउ द टाइटली इज द एनर्जी कंप्रेस्ड इन द पल्सेस, कि एनर्जी जो है पल्सेस में कितनी टाइटली कंप्रेस्ड हो रखी है। ओके, नाउ व्हाट इज द क्यू स्विचिंग। क्यू स्विचिंग हम आज नहीं पढ़ रहे हैं, क्यू स्विचिंग में थोड़ा सा आपको एक आइडिया बता रही हूँ कि क्यू स्विचिंग क्या है। सो क्यू स्विचिंग इज अ वेरी very easy concept, that energy, in case of laser, energy is stored in the population inversion until it reaches a certain level, and then it is released very quickly in a giant pulse. So energy को क्या किया जाता है इसमें, क्यू स्विचिंग में क्या किया जाता है, एनर्जी को स्टोर किया जाता है
इन पॉपुलेशन इन्वर्जन। कब तक? जब तक कि ये एक सर्टेन लेवल को सर्टेन लेवल तक ना पहुंच जाए। ठीक है, एनर्जी को एक सर्टेन लेवल तक पॉपुलेशन इन्वर्जन में क्या किया जाता है? स्टोर किया जाता है। ठीक है, एंड देन इट इज रिलीज वेरी क्विकली। और तब इस पूरी स्टोर्ड एनर्जी को अगर हम रिलीज कर दें वेरी क्विकली, ठीक है, तो इट विल प्रोड्यूस अ जाइंट पल्स। ये एक बहुत बड़ी पल्स होगी। ओके, सो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो जैसे कि storing water in a flower pot. If we store the water in a flower pot with a hole, okay, so if we have a flower pot and this flower pot has a hole in the bottom, and then releasing the water all at once, okay, तो इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हो कि कैसे कि एनर्जी को रिलीज करें, क्विकली कैसे रिलीज करें, और वो जाइंट पल्स कैसी होगी। तो उसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हम एक क्या करें, एक फ्लावर पॉट लें जिसमें कि होल है बॉटम में, और उसको आप जैसे आपने रखा हुआ है फ्लावर पॉट, और उसमें हमने क्या करा, वाटर को स्टोर किया, और देन उसको एकदम से उठा करके अगर हम क्या करें, उठा दें, तो क्या होगा, पूरा जो पानी है उसका वो क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। ठीक है, रिलीज कर दें उस होल से, या होल पे आप कुछ ऐसा ब्लॉक लगा दें, और फिर उसके बाद आप अचानक से अगर ब्लॉक खोलोगे तो जितना भी पानी उसमें हमने स्टोर किया था फ्लावर पॉट में, वो क्या होगा, एक हैवी फ्लो के रूप में हमें मिलेगा। ठीक है, तो सिमिलर मैनर में जो ये क्यू स्विचिंग है कि इसमें एनर्जी स्टोर कैसे की जा सकती है लेज़र में, population inversion, energy stored in the population inversion until it reaches a certain level, and then it released very quickly in a giant pulse. Okay, so it is analogous to this example. So by ये कैसे हो सकता है, जो एनर्जी हम रिलीज कर रहे हैं, ये हाउ इट इज डन। सो इसको जो करने के तरीके हैं वो है, एक तो आपका टू prevent the population inversion। ओके, एक तो पॉपुलेशन इन्वर्जन को प्रिवेंट कर दें, और दूसरा बाय एलिमिनेटिंग द फीडबैक, या तो हम क्या करें, फीडबैक को एलिमिनेट करें। सो फर्स्ट जो तरीका था कि पॉपुलेशन इन्वर्जन को प्रिवेंट कर दें, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लेज़र एक्शन के लिए तो पॉपुलेशन इन्वर्जन मस्ट है। बट दूसरा जो मेथड है इसको हम कर सकते हैं, दैट इज बाय एलिमिनेटिंग द फीडबैक। सो बाय एलिमिनेटिंग द फीडबैक एंड देयर बाय प्रिवेंटिंग द लेजिंग एंड thus storing all the extra energy in the population inversion। ठीक है, सो इस तरीके से हम कर सकते हैं। अगर हम फीडबैक को एलिमिनेट कर दें एंड लेज़र को प्रिवेंट कर दें, लेजिंग एक्शन को प्रिवेंट कर दें, तो क्या होगा, जितनी भी एक्स्ट्रा एनर्जी है वो सब क्या हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी इन पॉपुलेशन इन्वर्जन। एंड बाय ब्लॉकिंग वन ऑफ द लेज़र मिरर्स, और हम क्या करते हैं, एक लेज़र मिरर को क्या करते हैं, जैसे ऑप्टिकल रेजोनेटर्स में हम एक्टिव मीडियम को रख लेते हैं, दैट इज द लेज़र सिस्टम। सो अगर हम एक मिरर को क्या कर दें, ब्लॉक कर दें, सो इस तरीके से हम क्यू स्विचिंग को जनरेट कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ द लेज़र इज क्यू स्विच्ड। लेज़र को क्यू स्विच्ड कैसे किया जा सकता है। ठीक है, तो इसकी मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स और जो आगे का जो डिस्क्रिप्शन है ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ये जो जनरल टर्म्स थे लेज़र में जो हम क्यू स्विचिंग पढ़ते हैं, क्यू स्विचिंग, उसके लिए ये कुछ जनरल टर्म्स हमने आज पढ़े। ठीक है, जैसे कि एवरेज पावर, पीक पावर, रिपीटेशन पल्स, रिपीटेशन रेट एंड पल्स विड्थ। ठीक है, ये सब कुछ जनरल टर्म्स हैं। ओके, एंड ड्यूटी साइकिल, ये सब तो इनको आप पढ़िए और इनका यूज़ होगा नेक्स्ट जो हम इसमें आगे जो पढ़ेंगे क्यू स्विचिंग। और ये स्विचिंग की जो टेक्निक्स हैं, क्यू स्विचिंग हो गए, मोड लॉकिंग हो गया, इसको पढ़ेंगे और इसमें ये सब यूज़ होंगे। ठीक है,
So okay,